Okay. Now, this is the first class, right? So let me sort of explain you how this class will function in detail. Okay, and also what are the things that I will be giving you, and what are the things that you are expected from your side, right? You have to put in some effort also. Okay, so first, let us look at the syllabus first. Now, if you look at the syllabus, you will find that our syllabus is basically divided into two parts, right? We have paper 1 and then we have paper 2. Now, if you look at it, this paper 1 and paper 2, again both is divided into two parts for the section A and section B. Now, in paper 1 of section A, we have total constitution, we have 11 topics for that, and then we have admin law. For that we have around 6 topics. Right, so altogether around 17 topics are there in the section A of the paper 1. Then we have section B, it is international law. It totally consists of 16 topics in total. Okay, now obviously the counting of the topic is different, right, but more or less this is the scenario. Now, if you look at paper 2, we have law of crime. Crime have 11 topics, and then we have tort. Depending upon how you count, we have 9 topics. Okay? Now, sometime in crime, 2 topics can be counted one, depending upon the type of topics, right? Like for example, murder and culpable homicide and hurt and grievous hurt are, I am not counting as a separate topic, but same topic, that is your offence against body. Okay? So in that situation. Then we have your part B or section B of the paper 2. We have here contract. It is little bit longer. You have 14 topics in total of the contract. And then we have CLD, contemporary legal development, and here you have exactly 8 topics. Okay? So this is the structure of our syllabus. Now, if you look at it, overall we have around 80 topics. Right? Overall we have around 80 topics, more or less 77 to 80 topics. Now remember, if you think about it, the total number of questions that we get in both of them, right? What is the structure of the question? So the structure of the question is that we have 5 questions, and here we have 5 questions, which is of 10 marker each in both of them. Right? We have in section A 5 questions, 10 marker each, in section B 5 questions, 10 marker each. Then you have, and let us say that is question number 1, and that is question number 5. Okay? Same thing will be happening here also. 5 into 10 marker, we have question number 1, and 5 into 10 marker, we have question number 5. Okay? And then you will have 3 more questions. 3 more questions meaning from part A you will have question number 2, question number 3, and from part B and question number 4, and from part B question number 6, question number 7, and question number 8. Right? So we will have 3 questions each. Now the structure of these 3, and here also there will be the same thing, right? Question 2, question number 3, question number 4, here question number 6, 7, and question number 8, right? Now in this, again, you will have all of them, the structure is same, that is, you will have a 20 marker question, and you will have 2 15 marker question. तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए सोचिए, 3 9 and plus 5 कितना हो गया 14. सेम थिंग वे है ऑल्सो, 9 plus 5 14. तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए 28. Here also we have 28 questions, right? And total number of topic is 80. So at a given time, remember a very important point, at a given time you won't find more than 2 questions in one topic. कभी नहीं होता है. Very important. In a given time you won't find more than 2 questions in one topic. मतलब कि आपके पेपर में एटलीस्ट 50% सिलेबस तो पूछा ही जाएगा. पहले क्या होता था, बिफोर 2013 मॉडल में एकदम फिक्स होता था कि देखो एक मर्डर कल्पेबल होमिसाइड पे क्वेश्चन आएगा, हो गया, निश्चित रूप से 20 नंबर का आएगा. अब ऐसा नहीं है, हो सकता है दे माइट आस्क यू क्वेश्चन हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट और मर्डर से क्वेश्चन ही ना हो. ठीक है, सो दैट इज समथिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर. तो आप प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते हैं कि ये टॉपिक पढ़ूंगा इसको छोड़ दूंगा. Getting my point? So one thing that you must keep in mind that you cannot prioritize
this topic I will leave and this topic I will take into account. That simply cannot happen. It means कि each and every topic needs to be given fullest of the attention. ठीक है, हालांकि you will have a chance to skip, क्योंकि टोटल और ये सारे 50 मार्क्स के होते हैं, तो आपको 250 नंबर के पेपर लिखने हैं और क्वेश्चन नंबर 1 and 5 कंपलसरी होता है, ठीक है, और रेस्ट जो 6 बचा है इसमें से कोई आपको 3 लिखना है, सारे क्वेश्चन 50 मार्क्स के, ठीक है, तो रेस्ट के जो 6 बचे उसमें से कोई 3 लिखना है, तो आप चूज कर सकते हैं कि यहाँ से 2 लिख लें, यहाँ से 1 लिख लें, तो मतलब इंटरनेशनल लॉ कम पढ़े और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ज़्यादा पढ़े, हो सकता है, क्योंकि यहाँ से आप 150 नंबर का क्वेश्चन लिख रहे हैं और इसमें से सिर्फ 100 नंबर का क्वेश्चन लिख रहे हैं, दैट यू कैन डू ऑब्वियसली, लेकिन दिस डिसीजन आई विल ऑलवेज रिक्वेस्ट यू टू टेक इट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, पहले से प्री डिसाइड मत कर कि भाई हम इंटरनेशनल लॉ कम ही पढ़ेंगे, ज़्यादा हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन मैं उससे ज़्यादा अटेम्प्ट करूँ, क्या पता कुछ ऐसा उलूल क्वेश्चन आ गया कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में तो क्या करेंगे, ठीक है, सो दिस डिसीजन एज यू आर वेरी फार अवे फ्रॉम गिविंग मेन्स राइट, सो डोंट टेक राइट नाउ, let us study everything as if I have to attempt the questions. Now once that is done, then we will move towards the choosing or rationalizing our topic that is in the mains exams. समझ में आ रही बात, ये clear है? So this is the structure of our exam. Now remember, in this structure, paper 1 seems to be much more easier. छोटे topic होते हैं, काफ़ी short syllabus है, but paper 2 is little bit longer. जैसे आप देख सकते हैं, here you have almost 20 topics, here almost you have 22 topics, right? So very long syllabus. Now in paper 2 also there are certain topics which seems like a topic but it is a subject in itself. Like in the case of contract, you will find there is a topic called contract law, there is a topic called Insurance Act. Now Insurance Act itself is a, yes, similarly there is a topic called indemnity guarantee, right? That is a simply there is a topic called agency. There is a entirety of the subject of agency is there. Similarly, we will have a topic called negotiable instrument, but that itself people read in a semester, right? Same thing happens in the case of CLD also. We have topic which is a syllabus in itself, right? A subject in itself. Environmental laws of India. The word is environmental laws of India. There are more than 20 environmental laws. So obviously we will not study each one of them, right? So based on experience, once I will talk about that topic, I will rationalize कि चलो ये पढ़ना है, इसमें इसके बियॉन्ड नहीं पढ़ना है, समझ में आ रही बात ये, राइट? सो डोंट गो ऑन लुकिंग एट द टॉपिक एंड फीलिंग कि ओके देयर इज लॉट ऑफ the syllabus is quite vast. Syllabus is actually not very vast. The entire syllabus end to end we finish it here in 5 months, plus minus 15 days obviously, right? That can be obviously sometimes you can take little bit more time, but more or less the time always remains the same. Now out of that 5 months, you will see that we give 2 months to this and almost 3 months is taken by this because syllabus is little bit longer, right? And I must tell you, no matter how the people you feel like the marks that people get, most of them gets better marks in paper 2. कहने को छोटा सिलेबस मतलब बड़ा सिलेबस है, फिर भी पेपर 2 नंबर ज़्यादा आते हैं, राइट? खासकर इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ it is there is a very interesting point about it, why that happens. कि people are mostly emotional about constitutional law, right? Because our nature of the study in our law colleges are such that people too much focus on the constitutional law, right? The faculty also talking about constitutional law becomes very emotional, unity, integrity, social justice, right? But and a student also feels the same, right? And you must have seen that constitutional law is perhaps the only law whereby it is studied in 2 semesters. Otherwise सारे सब्जेक्ट को एक सेमेस्टर में निपटा देते हैं, ठीक है? कुछ सब्जेक्ट्स हैं 2 सेमेस्टर वाले, मोस्ट ऑफ देम इज 1 सेमेस्टर, राइट? एविडेंस एक में होता है, CRPC 1 में होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल 2 सेमेस्टर में पढ़ाते हैं. दैट टू 1 semester entirety of the fundamental right and 1 semester is rest of them. But here the fundamental right is one topic and you only get 15 mark a question from fundamental right, not more than that. ठीक है? तो थोड़ी सी अपनी जो कॉलेज की स्टडी है उससे थोड़ा यहाँ डिफरेंट रखना है, ठीक है? मैं यहाँ पे आया तो हमारी एक्सपर्टाइज का कुछ तो हेल्प मिलना चाहिए आपको ऑब्वियसली, ठीक है, राइट? सो वन थिंग यू मस्ट कीप इन माइंड कि जो कॉलेज की आपकी हैबिट होती है कि विल गेटिंग 5 क्वेश्चन टू राइट इन 3 hours और 6 क्वेश्चन, राइट? दैट डू नॉट हैपन, राइट? यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको कितने करने हैं, अगर 3 भी सेलेक्ट करना है इसमें तो 9 and plus 10 19 क्वेश्चन यू हैव टू डू एंड दे हैव ओनली 3 hours, राइट? 180 minutes 19 क्वेश्चन, right? So we will have not much time about it, okay? So obviously we will have to integrate accordingly. This point is clear, yes? Online people, are you watching it nice and fine? मेरी आवाज़ आ रही है आप सभी को?
Okay, okay. Chali. Now let us come to the next point, and the next point is with regard to how we will complete the syllabus. Now, the beauty of this subject is that one has nothing to do with another. Right? That do not have happen in any other optional. If you study suppose geography, physical नहीं होगा तो human geography में दिक्कत होगी, philosophy में ये नहीं पढ़ेंगे तो उसमें दिक्कत होगी. यहाँ पे एक सब्जेक्ट का दूसरे से कोई लेना देना नहीं. Right? Tort has nothing to do with crime. I mean, tort has to do with crime, but in terms of understanding, it has nothing to do with crime. Right? So it means what we will do, that we will pick up one particular subject and we will try to finish it first. उसके बाद randomly कोई भी एक subject ले लेंगे and we will start with it. बच्चों ने कहा कि सर अब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, इंटरनेशनल लॉ छोड़िए, क्राइम से शुरू करते हैं. चलो क्राइम से शुरू करते हैं. राइट? क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल लॉ का क्राइम से कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, तो ऑर्डर थोड़ा सा हॉचपच भी करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द जो भी जनरल पब्लिक कहेगी. भाई अल्टीमेटली डेमोक्रेसी है, जो जनरल पब्लिक है ऑब्वियसली, राइट, उसके हिसाब से वो सब्जेक्ट शुरू कर लेंगे. राइट, लेकिन स्टार्ट कॉन्स्टिट्यूशन से ही करेंगे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज समथिंग पीपल फील लाइक यू शुड study more. Okay, now as to the time frame, how much time I will take. So normally what happens, for constitution admin I take around 1 month of class, sometime 5 days extra I take, but this international law totally in 1 month I complete. We have 16 topics and the classes, we have almost 4 to 5 classes a week. Schedule is 4 classes a week, but sometime I take 5 classes, sometimes 6 classes also, depending upon the schedule, right? So in 1 month in totality the international law is done. Similarly, in constitution what happens, when the debate gets too much strained, meaning people, as I told you, in fundamental I try to complete in 1 week, but sometimes people are so jajbati about fundamental they start to discuss the things. So obviously a reasonable discussion I also do, right, obviously, but most of the time I say don't worry about it. Okay? See, fundamental obviously I will talk about it more, but let me little bit talk about it here, that you have 3 aspects of fundamental right from where you have questions. You have from article 12 and 13, you have the substantial fundamental right, and then you have article 32. तो ज़्यादा आसान पढ़ना कौन सा है, 12, 13 and 32 एक दिन में पढ़ सकते हैं. सब्सटेंशियल में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन सब्सटेंशियल में एक क्वेश्चन पूछता है सिर्फ एक. इस बार 29, 30 पूछा था, पिछले बार 14 पूछा था, पिछले बार उन्होंने 14 पूछा था. तो मतलब ये हुआ कि हर एक साल आप देखेंगे it is very very different, and that is something I always keep on telling. लेकिन बच्चों के विश्वास नहीं हो पाता कि नहीं क्या पता रीजनेबल क्लासिफिकेशन में अभी रिसेंट वाला कोई केस पूछ दे. नहीं पूछते हैं भाई, पॉसिबल ही नहीं है. आप 2013 के बाद आप सिलेबस उठा के देख लो, नहीं पूछते. दे डोंट आस्क यू. कभी भी उन्होंने नहीं पूछेंगे हाँ 15 क्लॉज 1 क्लॉज 4 पे केस लॉ लिखो, कभी नहीं पूछेंगे. Write a short note on catch-up rule under Article 16(4). Never they will ask you. So, right? So, what you have to do, that you have to rationalize, because out of these 3 aspects, the questions are mostly asked in Article 12, 13 and Article 32, and then substantial. याद रहेगा ये point? Clear है, right? So it means कि the help that I will be giving you to rationalize the syllabus, as I already I generally tell people that you cannot think that in 5 months you will study what you have not studied in your entire law college. ऐसा मैं कुछ नहीं पढ़ा सकता हूँ जो law college में आपने नहीं पढ़ा होगा. मेरा यहाँ पर्पस ये है कि मैं कट डाउन करूँ और एक डिसिप्लिन मेंटेन हो कि चलो यार 5 महीने में यूपीएससी स्टैंडर्ड का सिलेबस खत्म हो गया, अब 260 270 नंबर मैं ला सकता हूँ. दैट इज़ द पर्पस. ठीक ना, पीएचडी करने हम लोग नहीं आए. आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट कि वी आर नॉट हेयर टू डू पीएचडी. ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्टडिंग अनक्लॉज, आई जनरली टीच द इंटायर अनक्लॉज इन 1 क्लास. यू माइट फाइंड क्या कि अनक्लॉज एक क्लास में, बिल्कुल एक क्लास में, because I have seen what kind of question comes, right, and accordingly I will teach, rather than going into detail of the case laws with regard to one clause. Like for example, on clause there is a dispute settlement mechanism also, like a court, right. Now that International Tribunal of Law of Sea, in that International Tribunal of Law of Sea, in last 50 years, there is more than 100 cases. वहाँ भी तो केस होंगे ना, country A versus country B. We need not to go into detail of those cases. कभी नहीं पूछता है. ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछेगा, write a short note on unclause, या write a short note on International Tribunal, International Dispute Law of Sea, Tribunal of Law of Sea. That is the only question they ask, right? So you need not to go in detail. हाँ, हालांकि एक बार हुआ था, जैसे मान लीजिए इंटरनेशनल लॉ में
वो जो मोदी साहब भाग गए थे, नीरव मोदी, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था उस साल कि भाई व्हाट इज़ द प्रोविजन ऑफ द बाइलैटरल ट्रीटी बिटवीन यूके एंड इंडिया, extradition treaty. Now, does it mean that you will study every extradition treaty India have for all the countries? No. Then how will you answer that question? So obviously when we study extradition, we study kyunki these are the major principles of extradition: double criminality, rule of specificity. So what you will write? Yes, there is a treaty and the treaty contains following, and you write all the principles. That will be not wrong, because that treaty will have those principles. So right? So we have to act clever. If a question comes which is sort of a very specific in nature, then you have to actually support it by your general content, rather than running around and studying all the bilateral investment treaty or bilateral extradition treaty. Simply not possible. So clear. So one thing keep in mind, that we will have to rationalize. Rationalization is very, very important, right? Otherwise it is an endless exercise, and if you start studying in that depth and detail, not required at all. So हमारी बात ये clear है, understood? Okay. चलिए, now let us come to the, अच्छा तो time मैं बता रहा था, sorry, तो ये दोनों एक एक महीने में खत्म करेंगे, right? Now these two actually, this crime almost take 3 weeks, and we will study both IPC as well as BNS, because still I think if you write IPC along with BNS, that will be a good idea, at least in the beginning. बाद में आप पूरा BNS लिखिए, लेकिन at least in beginning, right? IPC slash BNS so and so, IPC 300 murder slash BNS 99. Okay. क्वेश्चन पूछा, वही तो पॉइंट है, दैट इज द पॉइंट कि अपना सिलेबस नहीं चेंज हुआ और अभी भी आईपीसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट? लेकिन मैंने ये देखा, जैसे ये लड़का जो इस पर 49 वाला था, क्या नाम है उसका, 58 क्या, आदित्य, ओबियसली 2-3 साल से स्टूडेंट था, लास्ट ईयर भी उसका 200 समथिंग रैंक था, 384. तो उसने कहा कि सर मैंने इस बार पूरा का पूरा बीएनएस लिखा, और आपने जो सजेस्ट किया था कि शुरू में सिर्फ आईपीसी लिखा, आईपीसी स्लैश बीएनएस, तो मुझे लगता है एंड दैट आई सजेस्टेड टू एवरीवन, राइट? सो थिंग्स एंड दिस इस ईयर भी ऑलमोस्ट 72 स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड मेंस, ठीक है, टोटल. और उस 72 में मुझे लगता है कि सबको मैंने वही एडवाइस किया था कि भाई आप पहले बीएनएस स्लैश आईपीसी लिखो और फिर राइट द एंटायरिटी इन द बीएनएस, ठीक है, एंड दैट हैज़ वर्कड, ठीक है. जैसे लास्ट ईयर मात्र 50 स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए थे, राइट? तो अल्टीमेटली 19 वही 1/3 क्वालिफाई होते हैं, 17 क्वालिफाई हुए थे, इस बार 72 क्वालिफाई किए, राइट? तो आई एम वेरी श्योर कि इस बार 20-25 रिजल्ट आएगा, ठीक है. एंड द एडवाइस इज सेम दैट आई एम गिविंग यू कि बीएनएस सिर्फ बिगिनिंग में आईपीसी स्लैश बीएनएस, उसके बाद में आप बीएनएस लिखिए, कोई बात नहीं, क्योंकि इसके पीछे एक ह्यूमन कॉज है, राइट? जो प्रोफेसर पिछले 70 साल से पूरी उम्र खपा दी आईपीसी में, ठीक है, उनको बीएनएस के सेक्शंस हो सकता है अभी भी याद ना हो, ठीक है. तो शुरू में रेफर कर देने में कोई दिक्कत नहीं. समझ में आ रही बात? ये क्लियर है? ये बीएनएस आईपीसी वाला कॉन्सेप्ट तो समझ में आई? यस ऑनलाइन पीपल? यस अभाष, अद्युत, अकील? हाँ. सो डोंट गेट कंफ्यूज विथ रिगार्ड टू दीज टू, राइट? यू ओनली राइट आईपीसी इन द बिगिनिंग and BNS in the later part of that, right? That is something important. Okay. Then for TOT, hardly 2 weeks of class needed. 6-7 क्लास में TOT खत्म हो जाता है, right? It is not very tough. 2-4 एरिया है जिससे क्वेश्चन आते हैं, तो it will be little bit. तो 1.5 months हो गया करीब इसमें, ठीक है. And again for contract we require 3 weeks of classes. इससे कॉन्ट्रैक्ट आपको पता है काफ़ी बड़ा है, ठीक है. Sometime it takes 4 weeks also. मतलब ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बराबर कॉन्ट्रैक्ट में क्लास हो जाती है, ठीक है, क्योंकि जो लास्ट के 4-5 टॉपिक है वो कहने को एक टॉपिक है, लेकिन पूरी की पूरी एक्ट है, ठीक है. तो उसमें टाइम लग जाता है, राइट? सो ऑलमोस्ट 4 weeks कर लीजिए उसको. एंड देन वी हैव CLD, इट विल टेक 2 weeks, ठीक है. तो मोटे तौर पे सिनारियो ये रहता है कि 3 महीने पेपर 2 और 2 months इज पेपर 1, राइट? सो दैट इज द ओवरऑल सिनारियो. अब इसमें एक बच्चा था मुझसे, उसने मैसेज किया था कि सर व्हाट इफ़ ये सिलेबस जैसे आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर 21, तो वाले ये दिसंबर से भी काउंट करें आप इसे, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक ये सिलेबस जाएगा, राइट? तो अगर हमको पहले से पढ़ना हो, राइट, तो क्या करें, राइट? तो उसमें कुछ नहीं करना है आपको. यू ज्वाइन द बैच जो कि 27 सितंबर के आसपास से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, सॉरी अगस्त के आसपास, 1 या 2 अगस्त का. उसमें क्या है कि उसमें मैंने 2-3 टॉपिक पढ़ा दिया, राइट? तो उसको ज्वाइन कर लीजिए. तो 2-3 टॉपिक आप चाहें तो पैरेलली पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि भाई ये लाइव पढ़िए और उसको रिकॉर्डेड देखिए. मतलब
सोल्यूशन। अगर आपको अगली बार मेंस नहीं देना है, मतलब प्रीलिम्स की तैयारी नहीं, आप उसके नेक्स्ट ईयर के लिए है, देन कंटिन्यू विथ इट। अप्रैल के बाद फिर यू विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू राइट इट। ठीक है, समझ में आ रही बात ये ऑनलाइन पीपल? यस, कीप दैट इन माइंड। जैसे बहुत बच्चे होते हैं विच इज़ मैंने देखा है, जैसे अच्छा एक बात और, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है ये, कि इस बार फाउंडेशन के सिर्फ 6 बच्चों ने मेंस क्वालिफाई किया। लिख रहे थे करीब 12 बच्चे, 12 या 13, सिर्फ 6 बच्चों ने मेंस क्वालिफाई किया। इसके पीछे डेटा ये है कि अराउंड मैं फाउंडेशन में 300 बच्चों को पढ़ाता हूँ साल भर में, अराउंड, जो मल्टीपल बैचेज है 40-50 40-50, और सिर्फ 1% बच्चे जो है प्रीलिम्स लिख पाते हैं उसमें, जो कि यूपीएससी का डेटा अपना भी वही है कि जो टोटल 7-8 लाख बच्चे देते हैं पेपर, उसमें से 12-13 हज़ार क्वालिफाई करते हैं, 1 से 2%, ठीक है, उससे ज़्यादा क्वालिफाई नहीं करते, 1.5 टू बी प्रिसाइज। तो जो बच्चे पिछले 3 साल से हमसे पढ़ाई की है वही प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देते हैं। 3 साल के बाद जनरली या तो किसी और कैरियर में चलेगा, नहीं तो छोड़ दिया। तो मतलब ये है कि जो टोटल बच्चे जो एग्ज़ाम लिख रहे हैं, जो कि मेंस लिखा है इस बार उन्होंने 12-13 बच्चे, वो पिछले 3 साल के 2%, 200 600 बच्चे हुए, 600 का 2% 12 बच्चे होते हैं। तो 12 बच्चे ही मेंस लिखे इसमें, समझ आ रही बात ये? ठीक है, और उस 12 में से सिर्फ 5 क्वालिफाई हुए, वो भी ठीक है। यूपीएससी ऐसे भी वही लेती है कि जितना एग्जाम देता है उसका 1/3 बेसिकली क्वालिफाई होती है। तो लॉ में इनफैक्ट 50% हुआ, दैट इज क्वाइट ओके, राइट। सो वन थिंग दैट आई विल ऑलवेज आस्क यू कि एक बार सिलेबस खत्म करने के बाद यू स्टार्ट विद द प्रीलिम्स विद अ वेरी वेरी ब्रूट फोर्स, क्योंकि बात को समझिए कि यूपीएससी में प्रीलिम्स इज द मेन हर्डल, एटलीस्ट इन लॉ, सबसे बड़ा हर्डल प्रीलिम्स। दिमाग में बिठा लीजिए इस बात कि एक बार वंस यू आर डन एंड डस्टेड विद द लॉ, और मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी लॉ ग्रेजुएट है सबके सब, यस, ऑनलाइन पीपल मोस्ट ऑफ यू आर लॉ ग्रेजुएट, राइट। नॉन लॉ वालों को मैं ऐसे भी कहता हूँ कि भाई तुम कुछ और पहले देखो क्योंकि 5 साल का लॉ पढ़ाना बड़ा मुश्किल, ठीक है। मोस्ट ऑफ यू ऑनलाइन पीपल आर लॉ ग्रेजुएट, राइट? यस, एनीवन फ्रॉम नॉन लॉ बैकग्राउंड है? नो, अच्छा चलिए, सब कुछ लॉ ग्रेजुएट, गुड गुड। नाउ the one thing that I have seen is that most of the law graduate, if I give you questions right now to write of the law optional, आपको आराम से 150 से 200 नंबर आ जाएंगे। 280 290 नहीं आएंगे, लेकिन 150 180 थोड़ा बहुत अगर आपने क्लास में पढ़ाई कर रखी है तो एकदम एब्सर्ड आंसर नहीं लिखेंगे, कुछ तो लिखेंगे जितना याद आ रहा है, तो उसी को इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो लॉ की परेशानी आप छोड़ दीजिए, जितना मैं आपको लॉ में पढ़ाऊंगा उसके बियॉन्ड आपको घर पे जा कर के 1 घंटा बस उसको एक बार देख लीजिएगा, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि जहाँ भी आप जीएस पढ़ रहे हैं, लॉ यहाँ पे आ गए हैं, एकदम क्लियर होगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आप फोकस कीजिए प्रीलिम्स, क्योंकि मुझे खुद ही दुख होता है ना कि भाई फाउंडेशन के बच्चे क्वालिफाई करते हैं तो ज़्यादा खुशी होती है ना, रादर दैन टेस्ट सीरीज, ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन वही है कि स्टैटिस्टिक ऐसा है कि फाउंडेशन के बच्चे को जो प्रीलिम्स निकलने में दिक्कत होती है, समझ में आ रही बात की, राइट। तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि लॉ के साथ साथ जो है ना प्रीलिम्स पर फोकस कीजिए, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खैर चलिए, अब देखते हैं कि हम लोग क्लास कैसे लेंगे। तो देखिए, क्लास की जो टाइमिंग होती है यहाँ पे वो 4 से 6 होती है, कभी कभी 4:30 भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन 6 के बियॉन्ड नॉर्मली मैं नहीं लेता हूँ। और दूसरा कि क्लास ऐसे ही लाइव चलती है जैसे चल रही है, राइट, जैसे समथिंग यू नो गोइंग ऑन, इसी तरीके से क्लास लाइव चलेगी। जो ऑफलाइन आना चाहे, हालांकि प्रदूषण है, मैं कहता भी हूँ कि घर बैठ सकते हो तो घर बैठो, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज यहाँ पे जैसे आप ऑनलाइन भी अगर आप बैठे क्वेश्चन पूछे तो मैं देखता रहता हूँ, जैसे क्वेश्चन मैं उसी समय रिप्लाई करता हूँ, दैट इज़ वेरी गुड। मतलब बच्चे कुछ दिन के बाद ऑनलाइन शिफ्ट हो जाते हैं। दूसरा, क्लासेज जो है मंडे टू थर्सडे चलेगी, बट मैंने जैसा बताया कि आई कैन कॉल यू ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे एज वेल, ठीक है। अगर सिलेबस की कमी रही, ऐसा लगा कि भाई टाइम पे नहीं फिनिश होने वाला, तो मैं सैटरडे भी बुला लेता हूँ, ठीक है, फ्राइडे सैटरडे, बट बहुत ही रेयरली, मोस्ट ऑफ द टाइम मंडे टू फ्राइडे थर्सडे में काम चल जाता है, समझ में आ रही बात ही। दूसरा कि वंस दिस क्लास इज डन, इसकी रिकॉर्डिंग ऑनलाइन आपके डैशबोर्ड पे होगी, ऑफलाइन वालों को भी ये मिल जाती है क्योंकि लॉगिन एक ही है, तो आप लोग चाहे तो उससे बाद में देख सकते हैं। और इट इज़ यू नो, समझ अंजलि बता रहे थे, कुछ कुछ इंस्टीट्यूट क्या करते हैं कि 2 बार से ज़्यादा आप प्ले नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं, जितना बार प्ले करना है प्ले करके देखो आप, ठीक है। 1 साल की वैलिडिटी होती है इनकी, तो 1 साल तो बहुत हो गया, 5 महीने में ख़त्म हो गया, उसके बाद 7 महीने आपके पास ही रहेगा, राइट, तो मल्टीपल टाइम देख सकते हैं आप। अब क्या है कि वंस द लेक्चर इज़ डन, ठीक है, तो लेक्चर के साथ साथ मैं एक वीकली टेस्ट लेता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसको वीकली राइटिंग प्रैक्टिस कह लीजिए, टेस्ट कह लीजिए, व्हाटएवर, उसमें मैं कुछ नहीं करता कि जो भी आपके मैंने 3 से 4 टॉपिक आई हैव कवर्ड इन अ वीक, उस पे उसके बेसिस पे मैं आपको 6 से 7 क्वेश्चन दे देता हूँ कि भाई इसे लिखो, सैटरडे संडे बैठो और लिखो, और उसको लिखने में लोड मत लो, उसको लिखो, जो भी याद आ पा रहा है लिखो, जो मैंने क्लास में पढ़ाया वो लिखो, अगर तुमको अपने तरफ से कुछ वैल्यू एडिशन करना है तो वो करो, पूरा का पूरा लिखो, ठीक है, और वो आप मुझे सबमिट करेंगे टू चेक, ठीक है, मैं उसको इवेल्युएट करके आपको वापस दूंगा। शुरू में तो बहुत गंदे लिखते हैं बच्चे, ठीक है, जो मैंने पढ़ाया वही लेक्चर एज इट इज लिख दिया, दैट इज ऑल्सो ओके, ठीक है, दैट इज नॉट एन इशू, ठीक है, लेकिन वो धीरे धीरे क्या होगा, इंप्रूव होगा, ठीक है, धीरे धीरे इंप्रूव होगा। नाउ वंस दैट इंटायर दिस वीकली टेस्ट इज डन, तो करीब 25 वीकली टेस्ट हो गए 5 महीनों में, मतलब 20-21 टेस्ट। उसके बाद जब ये वीकली टेस्ट खत्म हो जाएगा तब मैं आपको 12 फुल लेंथ टेस्ट दूंगा, FLTs कहते हैं 12, और ये जो कॉपी है ये मैं 1 to 1 चेक करता हूँ कि आप सामने बैठेंगे और मैं चेक करूँगा, ठीक है, अगर आप यहाँ नहीं आ पाते हैं तो ऑनलाइन चेक करूँगा, ठीक है, आप मुझे भेज दीजिएगा वो iPad पे, वो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, आपको दिखता है, ठीक ना, वैसे मैं चेक करूँगा, और ये बड़ा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। अब ये FLTs कैसे होंगे, तो इसमें वही 19 क्वेश्चन होंगे ऐसे बने हुए पूरे के पूरे, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन एडमिन में 2 होंगे, इंटरनेशनल लॉ में 2 होंगे, इसमें एक इस पे मतलब इस दोनों पे भी 2 हो गए, एक इस पे पूरा कॉन्ट्रैक्ट, एक CLD, और इस दोनों के 2-2 इंटायर, तो 8 ये और 4 ये, तो मतलब 4 पेपर बिल्कुल एकदम UPSC वाला जो फुल लेंथ होता है वो होगा, ये भी UPSC की तरह फुल लेंथ होगा, बट सिलेबस इसका 7-7 6-6 टॉपिक होगा। तो इसमें भी कुल मिला के आप देखा जाए तो एक में अगर आप 28 क्वेश्चन है तो 12 तो करीब करीब 600 क्वेश्चन हो गए, और प्लस वीकली मिला ले तो 150-200 क्वेश्चन हो, तो करीब करीब आप 750 क्वेश्चन आप करेंगे, समझ में आ रही बात है। और टोटल जो अपना 80 टॉपिक है, इस 80 टॉपिक पे इसके बियॉन्ड क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं बिल्कुल, आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको कि यू विल नॉट गेट इन UPSC अ क्वेश्चन विच वी हैव नॉट डिस्कस्ड इन क्लास, ठीक है। अब इक्का बाउंसर आ गया कोई, उसका तो कुछ ले ही नहीं सकते, जैसे पिछले बार उन्होंने पिछले बार कोई कमेटी की रिकमेंडेशन की रिपोर्ट पूछ ली थी, वो भी कमेटी दैट वाज विथ रिगार्ड टू एजुकेशन बिकमिंग अ राइट, फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन, उसके लिए कोई कमेटी बनी थी, उसके बारे में पूछ रहे थे, ये कमेटी की रिकमेंडेशन बताई। अब वो तो मतलब पॉसिबल भी नहीं है, तो एक सबने तो उस क्वेश्चन को छोड़ ही दिया, लेकिन वो लड़की का मुझे नाम भी याद है, 73 रैंक था उसका, मिश्रा, समथिंग मिश्रा। सी सेड कि सर मैंने कभी GS में उसे पढ़ रखा था, यस, पल्लवी मिश्रा, ठीक ना, मैंने जो है लिख दिया ठीक है, राइट। तो वो अगर एक आउट ऑफ द ब्लू कुछ आ गया तो कोई बात नहीं, दैट इज इनकॉन्सिक्वेंशियल, अगर उसे छोड़ भी देते हो ऑप्शन में आप उसे निकाल सकते हो, समझ में आ रही बात ये, राइट। क्योंकि और ऐसा कॉन्फिडेंस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी ऑप्शनल में क्वेश्चन रिपीट होता है दैट इज योर लॉ, 90% PYQ होता है, 90%। जैसे इस बार इन्होंने जो इंटरनेशनल लॉ का पेपर सेट किया था, जो सिलेबस है उसके आगे डिफाइन या डिस्कस लिख दिया, डिस्कस थ्योरीज ऑफ रिकॉग्निशन, ठीक है, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल एंड म्युनिसिपल लॉ, राइट, या फुल स्टॉप डिफाइन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एक्सट्रेडिशन। तो मतलब ये कि दे हैव सिंपली आस्क्ड द टॉपिक ऑफ द सिलेबस, एंड उसमें अंदर निटी-ग्रिटी में कभी नहीं गए थे, मैं भी नहीं जाऊँगा, तो इसलिए जो भी मैं PYQ देता हूँ उसमें निटी-ग्रिटी होती ही नहीं है, एकदम बिल्कुल PYQ मतलब PYQ। थोड़ी बहुत चेंजेस मैं इस FLTs में लाता हूँ, ठीक है, इस FLTs में ऑब्वियसली द चेंज आर रिक्वायर्ड, समझ में आ रही बात है। और मैं जैसे भी जो सिलेबस जिनका बच्चों का अभी पेपर खत्म हुआ उनको मैंने यही मैसेज किया कि देखो आपका सिलेबस खत्म हो गया है, लेकिन रियल टेस्ट और रियल आपकी जो इम्प्रूवमेंट है वो इसमें डिटरमाइन होगी, दैट इज योर 12 FLTs। क्योंकि 12 टेस्ट लिखना, 36 घंटे लिखना ही अपने आप में एक बड़ी बात है, राइट। और फिर से एक बार और मैं कहूँ जो कि हर एक बैच में मैं कहता हूँ, दैट इज़ योर मोस्ट ऑफ द टाइम कर्व बड़ा ही लीनियर होता है, मतलब कि शुरू में अगर 50 बच्चे हैं तो जो पिछला बैच था उसमें वही 60-65 बच्चे थे, तो जो क्लास हुई तो वहाँ पे 10 बैठे थे और ऑनलाइन करीब 4-5 थे, तो 15 बच्चे थे, तो मतलब कि 50 में जो है 35 गायब हो जाते हैं। फ़ोन करो, नहीं सर कर रहा हूँ सर, सेवी का भी फॉर्म भर दिया है सर, वो जुडिशरी वाला भी भर दिया है सर, बैंक वाला भी भर दिया है, ठीक है, अपनी अपनी सबकी चॉइसेस होती हैं, राइट।
तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा एज ए कैरियर, राइट, कि 1 साल यूपीएससी को दीजिए एटलीस्ट, ठीक है, फुल तरीके से पढ़िए, एंड देन यू नो थिंग्स इफ डू नॉट वर्कआउट देन दिमाग लगाइए। ऐसे भी अब जुडिशरी में 3 साल तो हो ही गया है, 3 साल तो ऐसे भी कुछ नहीं है, राइट। लेकिन ये जो छोटे मोटे फॉर्म आते हैं सेबी के और एक्सेट्रा, हालांकि बड़ा पर्सनल डिसीजन होता है, किसी को आप जज नहीं कर सकते हैं, उसकी फैमिली की सिचुएशन क्या है नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि 1 साल एटलीस्ट यूपीएससी को अगर आपने सोचा है तो दीजिए। और ये जो भी दिमाग लगाना वो 1 साल बाद लगाइए, भाई एक बार तो एफर्ट दे, ताकि बाद में यू नो वो ना रहे कि भाई क्या हुआ नहीं हुआ, हाँ रिग्रेट ना रहे। तो एक बार दीजिए, पूरा अपना एकदम जी जान लगा के एक बार दीजिए, ठीक है। आई हैव सीन पीपल जो कि एक बार पढ़ लेता है फिर चला जाता है, जॉब अब ज्वाइन कर लिया, 3 साल के बाद अपना धीरे धीरे पढ़ता रहा, 3 साल के बाद प्रीलिम्स निकला, पहले बार में निकाल लिया। ऐसे भी लोग होते हैं। जैसे जो रूपल, जो इस लड़के इस बार क्वालिफाई किए, वो बहुत पहले स्टूडेंट थे, 3 साल जाके वो किसी बढ़िया जगह पर उसने लॉ फर्म में काम किया, फिर छोड़ के आए, प्रीलिम्स हुआ, निकल गया, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो एक बार कम से कम यूपीएससी लेवल का पूरा लॉ ऑप्शन ख़त्म कीजिए कि भाई यूपीएससी के क्वेश्चंस में बना सकता हूँ। समझ में आ रही बात, ये क्लियर है? ओके, यस ऑनलाइन पीपल। तो ये बड़ा, मैं हर एक बैच में ये बात कहता हूँ, बिकॉज दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। उस दिन मैंने काउंट भी किया, हमें कितने बच्चे हैं बताओ इस वाले बैच के। तो सबने ऑनलाइन वही 5, 7, 10 ऑफलाइन थे और बाद बाकी 4, 5 ही ऑनलाइन थे, ठीक है। सो दिस इज समथिंग यू मस्ट नो टेक केयर, क्योंकि होता क्या है ना कि लॉ, हालांकि मैं प्रयास तो करता हूँ कि ड्राई ना हो, लेकिन कभी कभी बड़ा ड्राई हो जाता है। कि मैं कुछ नई बातें उस पर्टिकुलर जजमेंट से बताता रहता हूँ ताकि इंटरेस्ट बना रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या है ना कि इट बिकम्स ड्राई, ठीक है। तो उस ड्राइनेस को आपको ना ओवरकम करना है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के प्रोसीडिंग तो सो ही जाएंगे, ठीक है ना। इट समटाइम बिकम सो ड्राई, राइट। जैसे एक बड़ा फेमस जोक नहीं है कि जज स्लप्ड बाय हियरिंग द आर्गुमेंट ऑफ एडवोकेट। अब एडवोकेट जो है उसको कह रहा है रीडर को, वेक द जज, तो रीडर कह रहा है कि यू मेड हिम स्लीप, यू वेक हिम, ठीक है। तो इट हैपेंस, ठीक है ना। तो कभी कभी थोड़ा सा आपको सेल्फ एक मोटिवेशन करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू नो, कीप दैट इन माइंड। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर द रिसोर्सेज दैट आई विल प्रोवाइड यू, ठीक, क्या रिसोर्सेज मैं आपको दूंगा। तो देखिए मेरे हिसाब से 3 रिसोर्सेज आई गिव यू। द फर्स्ट इज द प्रिंटेड नोट्स। Now these printed notes are quite popular, right, of mine specifically, because these notes are so refined that you can write the entire paper of that particular topic from these notes, even though it sometimes is in 2 pages. क्योंकि मैंने ये सोचा कि देखो बहुत ही इंडिविजुअल क्वेश्चन तो आते नहीं एकदम डिटेल में घुस के, ओवरऑल पूछते हैं, तो मैं क्यों इंडिविजुअल एस्पेक्ट पे डिटेल नोट्स बनाऊं। अगर उन्होंने रिकॉग्निशन पूछा है तो थ्योरीज ऑफ रिकॉग्निशन, टाइप ऑफ रिकॉग्निशन, डिफरेंस बिटवीन डी फैक्टो एंड डी यूरे रिकॉग्निशन, यही पूछता है। तो मैंने नोट्स में बस वही लिखा, मैं डिटेल में घुसा ही नहीं हूँ कि हाँ भाई इस जुरिस्ट ने ये कहा, इस जुरिस्ट ने ये कहा। तो इसलिए मेरे नोट्स देखेंगे काफ़ी बिल्कुल रिफाइंड बने हुए हैं कि वो 90%, 95% तो आपको आंसर उसमें मिल ही जाएंगे, काफ़ी रिफाइंड बने हुए हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि नोट्स मैंने खुद से लिखा है, ऑब्वियसली नहीं लिखा है, मैंने भी वही किया जो आपके पास किताबें हैं। मैंने थोड़ा समय ज़्यादा उसमें लगाया, 6-7 महीने, और एक चैप्टर में अंडरलाइन किया। उस ज़माने में मैं चैट जीपीटी नहीं था, ठीक है, तो मैंने एक चीज़ों को अंडरलाइन किया और किसी ने उसे क्या कर दिया है, टाइप कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। तो ये जो काम जो आपको करने होंगे खुद से पढ़ने के लिए, वो मैंने मेहनत ऑलरेडी आपके लिए कर दी। तो जो मेन सोर्स है आप उसे ये प्रिंटेड नोट्स को बनाइए, जो मैंने आपको मतलब इस बैच में जो आपको मिलेगा, ठीक है। उसको मैंने बिल्कुल यूपीएससी की तरफ ब्लॉक्स में डिवाइड कर रखा है। जैसे मान लीजिए इंटरनेशनल लॉ में 17 टॉपिक है तो 17 ब्लॉक्स है, एकदम टॉपिक वाइज, उसका चैप्टराइजेशन ही टॉपिक वाइज। अगर आपके टॉट में 6 टॉपिक हैं तो 6 ब्लॉक्स हैं, याद रहेगा ये पॉइंट, क्लियर है। तो एकदम बड़ी प्लेन एंड सिंपल, जो सवाल आता है वही वो नोट्स में लिखे होगा, उसके बियॉन्ड नहीं। इसलिए आप देखेंगे बहुत बल्कि भी नहीं। इनफैक्ट आपके जो इसका है क्या कहते हैं आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का थोड़ा बल्कि है, ठीक है, क्योंकि ना चाहते हुए फंडामेंटल है। तो मैं वही कहता हूँ कि ब्लॉक 3 है फंडामेंटल, छोड़ दो उसे, ठीक है, लीव इट। उसके अलावा सारे ब्लॉक पढ़ो, ठीक है। वो जो फंडामेंटल है वो ब्लॉक है, उसको लास्ट में पढ़ो, अगर उसे निकाल दे तो दैट ऑल्सो बिकम वेरी नॉमिनल।
समझ में आ रही बात, ये क्लियर है, अंडरस्टूड, ओके। उसे मैंने इनफैक्ट लास्ट ईयर अपडेट किया क्योंकि बहुत सारे जजमेंट्स आ गए थे, ओके। उसी तरीके से इंटरनेशनल का ब्लॉग देखोगे, हार्डली इट इज 70-80 पेजेस पूरा का पूरा इंटरनेशनल लॉ खत्म है, तो उसके बियॉन्ड की जरूरत ही नहीं है। तो जो प्रिंटेड नोट्स है दैट इज वेरी वेरी यूजफुल। सेकंड थिंग इज दैट क्लास डिक्टेटेड नोट्स, सो ऑब्वियसली आई विल डिक्टेट नोट्स इन क्लास एज वेल, राइट। ये थोड़ा सा और प्रिसाइज होता है, ठीक है, और इसमें मैं ऑब्वियसली जो आपके रिसेंट जजमेंट्स हैं वो सब क्लास डिक्टेटेड नोट्स में थोड़ा ज़्यादा होते हैं, राइट। तो क्लास में मैं नोट्स डिक्टेट करूँगा ऑब्वियसली। तीसरी चीज़ है कि मैं जो है आपको एक रेगुलर करंट अफेयर देता हूँ। इस करंट अफेयर में लेकिन वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू इज दैट आप इसके करंट अफेयर के नोट्स नहीं बनाएंगे, ठीक है, विल नेवर मेक नोट्स। तो भाई आप क्या करेंगे, तो करंट अफेयर को सिंपली एक बार रीड कर लेंगे कि अच्छा इसमें ये जजमेंट आया, ये जजमेंट आया, 4 से 5 पेज वीकली। अगर किसी वीक में न्यूज़ नहीं होता है तो मैं 2-2 वीक पे निकालता हूँ, जैसे कोर्ट 2 हफ्ते के लिए हॉलीडे पे थी, क्योंकि तो ज़बरदस्ती का करंट अफेयर नहीं बनाना है। अगर न्यूज़ नहीं है तो मैं 1-1 महीने में भी एक बार करंट अफेयर देता हूँ कि देखो ये 10-12 नहीं है हमारे लॉ ऑप्शनल के लिए, बाद बाकी सब, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जजमेंट आप देखेंगे CRPC एविडेंस के होता है जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो ज़बरदस्ती फॉर द सेक ऑफ मेकिंग इट, मैं फर्जी जानबूझ के कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर करना है तो बकवास जो है 50-50 करंट अफेयर बनाता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। समझ में आ रही बात ये। तो ये जो मैं वीकली करंट अफेयर बनाता हूँ, ये वीकली करंट अफेयर वेबसाइट पे फ्रीली अवेलेबल है, राइट, यू मस्ट हैव सीन। अगर नहीं देखा देखिएगा, तो उसको जस्ट गो थ्रू कीजिएगा, नोट्स पे मत लिखिएगा। रीज़न मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि वंस यू गो फॉर मेंस ना, तब मैं करीब 30-40 पेज का एक अलग से राइटअप बनाता हूँ कि जिसमें ऑल द टॉपिक वाइज आई गिव यू द मेजर रिसेंट केसेस। 30-40 पेज का होता है एंड दैट इज सफिशिएंट फॉर एवरीथिंग। वो इसी को एक साथ लेकर के, क्योंकि जब भी आप मेंस लिखेंगे उस समय का करंट अफेयर आपको चाहिए। आपने पुराना पढ़ लिया, 2 साल बाद मेंस लिखने का मौका मिला, दैट बिकम्स यूजलेस। समझ में आ रही बात की, क्लियर है, राइट। तो ये करंट अफेयर का मेरे एंड दिस इज इरेस्पेक्टिव कि आप स्टूडेंट नहीं भी हैं तो नहीं है इन द सेंस कि आपकी क्लास खत्म हो गई, फिर भी ये करंट अफेयर के नोट्स मिलेंगे। अच्छा, उसके बाद में फोर्थ दैट इज योर 1-to-1 कॉपी चेकिंग। ये लेकिन सिर्फ टेस्ट सीरीज का होगा, ठीक है। दिस इज समथिंग विच आई रियली हेल्प यू आउट टू, क्योंकि होता क्या है, मैंने भी देखा है, आई मस्ट हैव सीन कि इफ यू सॉर्ट ऑफ टीचर्स टेल्स यू कि इसमें ये लिख सकते थे, ये लिख सकते थे, तो यू कहीं ना कहीं ब्रेन में वो छप जाता है, यार ये बोला था इन्होंने, ठीक है। तो इसीलिए मैं आई पर्पसफुली आस्क पीपल टू कम फॉर दैट 1-to-1 इवेल्युएशन, दैट इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भले आपको लगेगा टाइम वेस्ट है, टाइम वेस्ट नहीं है यार, आधा घंटा ही देना है। आधा घंटा में अगर 2-3 भी इवेल्युएट आप करवा लेंगे तो दैट इज रियली वेरी वेरी बेनिफिशियल, ठीक है। जो कि आप कितना भी कमेंट लिखे वो कन्वे नहीं हो पाता है। कितना भी बढ़िया अंग्रेजी में आप कमेंट लिख लें कि और एनालिसिस, इन डेप्थ एनालिसिस, जनरली कमेंट लिखने से क्या ही होता है, इन डेप्थ एनालिसिस नहीं है, ब्रॉडन कीजिए अपने पर्सपेक्टिव को, ये सब बड़ा ही फर्जीबाजी लगता है मुझे, ठीक है ना। ये कमेंट नहीं है, ये टाइम पास वाली बात है, बिल्कुल जनरलाइज करनी है। और वही जब 1-to-1 होता है तो बेटा इसमें BL कपूर मेंशन करना था, लिखो यहाँ BL कपूर, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इट इज़ वेरी इंडिविजुअलाइज्ड एंड दैट गेट स्टक इन टू योर ब्रेन। समझ में आ रही बात। तो ये जो वंस द सिलेबस इज ओवर, तो ये 1-to-1 टेस्ट जरूर लिखिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इससे एक एसोसिएशन भी बना रहेगा, आपको कभी कन्फ्यूजन हुआ, बहुत बातें होती है, जैसे बच्चे हैं कि सर मैंने सोच रहा है सेवी का ही फॉर्म भर दे, क्या करे, तो एक गाइडेंस भी हो जाती है। अच्छा कितने साल से कर रहे हो, तो सर 2-2.5 साल होगा, अच्छा तो भर लो, एक बार भर के देखो, ठीक है। मैं एक बात मैं कर रहा हूँ, अभी सेवी का फॉर्म आया था इसलिए मैं बार सेवी निकल रहा है, 4-5 बच्चों ने मुझे फ़ोन किया कि सर सेवी का क्या करूँ, ठीक है। समझ में आगे बात, ये क्लियर है, राइट। तो ये 5 गाइडेंस मैं आपको दूंगा, राइट। अब द वन थिंग दैट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि जब आप नोट्स बनाते हैं ना, नोट्स मेकिंग, तो उस नोट्स में 2 तरह के नोट्स हो गए। एक तो मैंने जो क्लास में डिक्टेट कराया है, उसके बाद व्हाट यू डू दैट बेस्ड ऑन दैट नोट्स, इसको आप समराइज करके 1 पेजर बनाएंगे, 1 पेजर। व्हाट इज दिस 1 पेजर, पर्पस क्या है इस 1 पेजर का, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड इट वेरी नाइसली। 1 पेजर का पर्पस ये है कि जैसे आपके पास 70 पेज हैं, दोनों तरफ मिला ले तो 35 पेज, उस 35 पेज को इस तरीके से डिफाइन करना है, मतलब बनाना है कि पूरी की पूरी सिलेबस आप 2 दिनों में रिवाइज कर लें, 2 दिनों में। अब आप कहेंगे सर ये पॉसिबल कैसे है, बिल्कुल पॉसिबल। इसमें क्या करना है कि आपको जो बड़े नोट्स जो हमने क्लास में डिक्टेट करवाए हैं उससे पूरा का पूरा छापना नहीं, सिर्फ ट्रिगर पॉइंट्स लिखना है।
जैसे मान लीजिए उस वाइकारियस लायबिलिटी वाला पार्ट है आपका टॉट का, तो उसको मोटे तौर पे जब पूरा आपने पढ़ लिया तो अगर उसका शॉर्ट नोट बनाना तो कैसे बनाएंगे? वाइकारियस लायबिलिटी, स्टेट लायबिलिटी, सॉवरेन फंक्शन, नॉन सॉवरेन फंक्शन, सॉवरेन फंक्शन में 3-4 केस, नॉन सॉवरेन फंक्शन में 3-4 केस, हो गया, बन गया एक पे मतलब हाफ पेज नोट्स। समझ में आ रही बात ये? लेकिन ये आपको खुद बनाना है, किसी दूसरे का अगर आप देखेंगे ना तो वो ट्रिगर नहीं करेगा। वंस यू राइट ए पर्टिकुलर लाइन, इट ट्रिगर्स द एंटायर थिंग इन योर ब्रेन कि अच्छा आई हैव रिटन दिस लाइन बिकॉज ऑफ दिस। ये मेहनत थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है भाई। मान लीजिए 2-3 बड़ा टॉपिक हुआ तो 2-3 छोटा टॉपिक हुआ तो 4-5 टॉपिक एक हफ्ते में हो गया। आपको सैटरडे संडे बैठिए, छुट्टी रहेगी, ठीक है, सैटरडे संडे बैठिए, मैक्सिमम आप हाफ एन आवर दीजिए, बन जाएगा। और वो जो आपका 35 दोनों तरफ 70 और ऐसे देखे तो 35 पेज होगा ना, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। तो जो टॉपर्स अपने नोट्स भेजते हैं बेसिकली वही 1 पेजर होता है जो मैंने उनको सजेस्ट किया, वेरी वेरी हेल्पफुल। आप MP जैन रिवाइज नहीं कर सकते हैं 3 महीने में, 3 क्या हम तो 2 साल में रिवाइज नहीं कर सकते ठीक है ना। तो आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए, क्योंकि मैं भी जो नोट्स लिखवाऊंगा ये भी काफ़ी बड़ा हो जाता है, एक तरह से क्रक्स हो जाएगा, ठीक है। एक बार वो आप मेहनत कर लेंगे, आई एम टेलिंग यू, वो आपको इतना बेनिफिशियल होगा, कुछ सोचने की जरूरत, जब जैसे ही प्रीलिम्स हुआ मेंस होना ही होना आपका। वैसे भी लॉ में सक्सेस रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, और सोचो करीब 150 बच्चे मेंस लिख रहे थे इस बार, 165, 72 ने क्वालिफाई कर लिया, तो गुड सक्सेस रेशियो, और किसी ऑप्शनल का नहीं होता, ठीक है ना। तो मतलब मैं इसलिए मैं बोलता हूँ सारा हर्डल आपका प्रीलिम्स है। प्रीलिम्स कीजिए, लॉ में मेंस होना बहुत आसान है। समझदारी बात ये क्लियर है, अंडरस्टूड राइट। तो ये 1 पेजर जो है ना, इसका मेहनत आपको करना बड़ा जरूरी है, नहीं तो अदरवाइज थिंग्स विल बिकम वेरी वेरी बैड, ठीक है। फिर क्या होगा कि इतना फैल जाएगा ना कि फिर आपको घबराहट होने लगी, यार क्या पढ़े बहुत हो गए, फिर वही MP जैन वाली बात होगी। अगर MP जैन खोल के बैठ गए आप एग्जाम से एक दिन पहले के रिवाइज करेंगे तब तो आपका कल्याण होगा। समझ में आ रही बात ये क्लियर है। अब एज टू द बुक्स, नो नीड टू बाई एनी एक्स्ट्रा बुक्स, मोस्ट ऑफ यू आर लॉ स्टूडेंट, यू मस्ट बी हैविंग सर दैट स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, चुपचाप उसे ही पढ़िए, ठीक है। और बुक्स को इनफैक्ट अभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जब आप ये आंसर लिखेंगे उसमें, जब वीकली टेस्ट, उसमें मैं कहीं कहीं कमेंट करूंगा कि रीड बुक, मतलब ये मुझे ये लगेगा कि आपका इस टॉपिक में नॉलेज मुझे थोड़ी सी कम दिख रही है, तब मैं कहूँगा कि अच्छा बुक पढ़ो इसका, राइट। 80% बच्चों को बुक्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। प्रिंटेड नोट्स को एकदम भगवान बनाइए, एकदम घोट जाइए उसे, ठीक है, हो जाएगा, उसके बियॉन्ड की जरूरत ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर क्यूरियोसिटी इज समथिंग विच इज़ वेरी हार्ड टू सप्रेस, राइट, तो फिर पढ़िए, ठीक है, रीड इट, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आ रही बात, ये क्लियर है, अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ओके। चल अब आ जाते हैं, दैट इज योर राइटिंग आंसर्स। यस, अभी तक सब बातें क्लियर है ऑनलाइन पीपल? वरुण, अच्युत, अरुण, यस एवरीवन, ओके ओके, ठीक है। नाउ द लास्ट थिंग दैट आई विल कवर इज बेसिकली योर राइटिंग आंसर्स, बिकॉज दिस इज समथिंग, ऑब्वियसली राइटिंग आंसर एक ऐसी चीज़ है जो टाइम बाय टाइम और भी इम्प्रूव होती है, बट स्टिल इन द बिगनिंग यू शुड एटलीस्ट नो। सी, इस बार भी जो मेंस क्वालिफाई किए हैं बच्चे, मोस्ट ऑफ देम यू विल फाइंड दैट it is not the depth of the answer that gives you good mark, but there are 3 distinct things that in an answer you must have that gives you good mark, that I often say is your content, second is the presentation, right, and the third is the structure. Now these are again very generic word, right, so let us go into detail क्या इसका मतलब है। देखिए, कंटेंट का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा है योर नॉलेज शुड बी देयर, और नॉलेज में ज़्यादा आपको किस पे फोकस करना है? विड्थ पे, विड्थ पे। जैसे कल मैं कॉपी चेक कर रहा था एक लड़के का, उसने इतना बढ़िया आंसर लिखा था, लेकिन आंसर लिखने में उसे लगे 3.5 घंटे, और वो जज की तरह लिख रहा था। तो मैंने कहा कि यार तुम जज बहुत बढ़िया बनोगे, लेकिन UPSC करना है तो उसे थोड़ा सा चेंज करो। तो हंस के कहने लगा, सर मैं जुडिशरी का प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन वो 3 साल वाला आ गया, इसलिए अभी UPSC कर रहा हूँ। उसके आंसर देखेंगे ना, मतलब ऐसे लिख रहे हैं, जैसे हमारे जो कोई केस, इन दिस केस सो एंड सो हैपन एंड अल्टीमेटली द कोर्ट सेड सो एंड सो, मतलब पूरे अच्छे वर्ड के साथ जैसे जजमेंट में लिखा जाता है। हमने कहा UPSC में ये नहीं करना है। UPSC में आपको जो 10 मार्कर क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको 150 मार्क्स वर्ड्स इस्तेमाल करने होते हैं।
5 जजमेंट लिखोगे तो 50 वर्ड हो जाएगा, नाम सिर्फ। 5 जजमेंट का नाम लिख दिया आपने तो 50 वर्ड हो जाएगा। 5-5 वर्ड भी अगर एक जजमेंट में रहा तो 50 वर्ड हो जाएगा। तो कहाँ से फिर तुम लिख पाओगे सब कुछ? तो उसको ऐसे सोचना है कि भाई जो बंदा कॉपी चेक कर रहा है, जो लॉ एक्सपर्ट प्रोफेसर है, तो अगर तुमने ये लिख दिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और ब्रैकेट में मेनका गांधी लिख दिया, तो यू विल अंडरस्टैंड कि यू नो कि ड्यू प्रोसेस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मेनका गांधी। यही मैसेज पहुंचाना है बस। समझ आ रही बात? ये वी नो, यही मैसेज पहुंचाना है कि आपको इसके बारे में आता है। तो जहाँ पे फिलोसफिकल क्वेश्चन बहुत बड़ा है, वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अगर डिटेल में जा करके लिखने लगे एक एक जजमेंट्स को, तो जगह ही नहीं बचेगी। तो किसी ने अगर फिलोसफिकल क्वेश्चन में 10 केसेस का ऐसे इस्तेमाल कर लिया, 2-3 लाइन लिखा और ब्रैकेट में नेम ऑफ द केस लिख दिया, और आपने एक ही केस में मेनका गांधी वाज रिफ्यूज्ड passport to go right, and ultimately she moved to the court, and ultimately the court said court provided for a landmark change in the understanding of the procedure established by law। लिखिए कहानी, ऐसे तो फिर आप लिखते रहिए। इसी जो मैंने बोला 15 वर्ड खत्म हो गया, 20 वर्ड, 150 वर्ड है टोटल। ठीक है, सो इट मीन्स कि आपका विड्थ ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। शुरू में आप गलतियाँ करेंगे, मुझे पता है, लिखेंगे कहानियाँ तो मैं कट करूँगा पूरा एकदम बेशर्मी से कि ये फर्जी है, फर्जी है, फर्जी है, कोई मतलब नहीं इसका। ठीक है, एक बच्चे को मैं देखा था, उसने एक क्वेश्चन था डीपीएस पे फंडामेंटलाइट का रिलेशनशिप बताओ। ठीक है, तो वो बड़ा लिरिकल अंदाज में लिख रहा है कि डीपीएसपी इज लाइक अ बर्ड विच इज कूइंग इन द गार्डन ऑफ फंडामेंटलाइट। ठीक, स्टुपिडिटी, ये ठीक है, ये चलेगा, लेकिन वंस यू आर द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट तब ये चलेगा। वो लिखते हैं तो इट मेक सेंस, यूपीएससी कॉपी में डजंट मेक सेंस। ठीक है, तो कीप दैट इन माइंड। Virsalu is saying can someone send what have been covered? You will get the recording, Virsalu, don't worry। अभी यहीं से आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है, डोंट वरी, यहीं से आप सुनिए। So I am explaining कि how to write answers, right? So the first thing, meaning of the content is that is the depth से ज़्यादा important width है, और सामने वाला कौन है? एक he is a law expert, he is a professor of law, right? So he would understand what you are referring to. तो limited word में maximum thing you have to convey, and this is something which requires a lot of time। शुरू में आप लिखेंगे कहानियाँ, ठीक है, धीरे धीरे ये बात समझ में आएगी आपको। इसलिए जितने भी टॉपर्स की कॉपी आप देखिए, मैं बोल बोल के भाई 2 लाइन लिखो, ब्रैकेट में केस लिखो, बस। तो सर इसमें बहुत सारी चीज़ें, तो छोड़ो ना, बहुत सारी चीज़ हुई थी, तो बस वो जो 2 मेन चीज़ें वो लिखो, ब्रैकेट में नेम ऑफ द केस लिखो, बस इतने पे फोकस करो। समझ में आ रही बात? ये क्लियर है, राइट? सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंटेंट ऑफ योर आंसर। विड्थ ज़्यादा चाहिए, ठीक है, मतलब मैक्सिमम चीज़ें कवर करनी है। Understood? Second thing is comes that is your presentation. Now what is the presentation? तो presentation का सीधा मतलब ये समझिए कि it is something which should make your answer look good and readable। ये बहुत important point है, good and readable। रीडेबिलिटी होनी चाहिए आपके आंसर की। अगर कोई आपके आंसर को पढ़ ही नहीं पा रहा है तो डजंट मैटर आपने कौन सा उसमें फिलॉसफी लिख दिया। और रीडेबिलिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सोचिए, हैंड राइटिंग, एंड सेकेंड इज द गैप बिटवीन लाइन्स। दूर दूर लिखिए थोड़ा सा। सब आजकल स्क्रॉल कर रहे हैं रील, बहुत कम अटेंशन टाइम है। वो ढूंढेगा नहीं कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट वर्ड है जो बीच में लिखा हुआ है, नहीं, कोई नहीं ढूंढेगा। ठीक है, तो रीडेबिलिटी होनी चाहिए आपके आंसर की। ठीक है, अगर बड़ा लिखते हैं तो छोटा लिखिए, गैप बढ़ा लीजिए, ठीक है, एंड अल्टीमेटली यू विल फाइंड दैट यू आर गेटिंग गुड मार्क्स। सेम आंसर का अगर गैप बढ़ाएंगे, अच्छी हैंड राइटिंग करेंगे, तो इसलिए आप देखिए इस बार भी जो भी टॉपर्स की कॉपी आप ऑनलाइन देखेंगे, मोस्ट ऑफ देम इज गुड हैंड राइटिंग, एंड दिस इज समथिंग विच आई डोंट थिंक इज ट्रू ओनली फॉर लॉ ऑप्शनल, फॉर आई थिंक फॉर एवरी ऑप्शनल, एवरी कैंडिडेट जो भी टॉप है। जैसे वो जो कौन सी लड़की टॉप की थी लास्ट बार ना, क्या नाम था उसका? हाँ, शक्ति दुबे, राइट? सी हर कॉपी, वेरी गुड हैंड राइटिंग, वेरी गुड हैंड राइटिंग। लास्ट ईयर भी जो लड़की थी, दैट ऑल्सो सी हैड ए वेरी गुड हैंड राइटिंग। ठीक है, हाँ, एक ही साल रहता है, 1 साल के बाद नाम भूल जाते हैं लोग। हाँ, ठीक है, वेरी गुड हैंड राइटिंग, राइट? तो दिस हैंड राइटिंग प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे मैं एक लड़के का नाम बार बार लेता हूँ, वो लड़का पिछले 3 बार से मेंस लिख रहा है, क्वालिफाई नहीं हो रहा है, और उसको हर एक बार टीचर जो है यही फीडबैक दे कि भाई हैंड राइटिंग ठीक करो। भाई ये फीडबैक अगर गंदा है तो सिर्फ मैं ही थोड़ी दूंगा जी, ये सारा टीचर भी यही फीडबैक देगा। तो इस पर अचानक से इंटरव्यू के टाइम में आया कि सर इंटरव्यू मेरा हो गया है,
मतलब इंटरव्यू कॉल आ गया, मैं क्या किया तुम तो, और गायब हो गया, मतलब पिछले बार मेंस लिखा नहीं हुआ, गायब हो गया, पूरे इस बार टेस्ट सीरीज लिखने नहीं आया, अचानक से इंटरव्यू मैम के क्या किया, क्या भाई क्या हुआ इस बार तुम एकदम गायब हो गए, सिर्फ टेस्ट भी नहीं लिखा। तो बोला कि सर मुझे इतने लोगों ने कहा हैंडराइटिंग ठीक करो, हैंडराइटिंग ठीक करो, कि मैं जाके 3 महीने का हैंडराइटिंग का कोर्स करके आया। ठीक है ना, अल्टीमेटली क्वालिफाइड। ठीक है, ऐसे 2 स्टूडेंट है जो मैंने देखा। तो मतलब ये है कि ये खासकर यू नो यू डोंट बी इन दिस इमेज कि अरे हैंडराइटिंग से क्या होता है, यूपीएससी बाबा बनना जरूरी, फर्जी बातें हैं ऐसे। ठीक है, नॉलेज, नॉलेज के क्या करोगे, सामने वालों को कन्वे ही नहीं कर रहे हो, डजंट मैटर। समझ में आ रही बात ही, तो हैंड राइटिंग सुधारिए। ठीक है, सुधारिए कहने का मतलब ये नहीं कि मोतियों की तरह लिखना शुरू कीजिए, लेकिन एटलीस्ट ये है कि एटलीस्ट रीडेबल हो। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए द थर्ड थिंग, एंड दैट इज व्हाई यू मस्ट हैव सीन, नॉट टू साउंड एंटी समथिंग, बट गर्ल्स ऑलवेज गेट गुड मार्क्स। देखा आपने, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है प्रेजेंटेशन। जो टॉप 10 में आप देखिएगा 6-7 गर्ल्स होते हैं ऑलमोस्ट, टॉप 20 में तो 12-15 गर्ल्स होते हैं। क्यों ज़्यादा होता है? ऑब्वियसली पढ़ते भी ज़्यादा मेहनत करते हैं, लड़कियाँ थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड होती है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन हैंड राइटिंग में एक एज है। ठीक है, इट इज़ एन एज। ठीक है, तो इट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट यू नो लर्न। लड़कों को भी होते हैं, क्षितिज का इस बार राइटिंग काफ़ी अच्छा था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, बट मोस्ट ऑफ थिंग दैट आई हैव सीन। और तीसरा जो है दैट इज योर स्ट्रक्चर। नाउ दिस इज समथिंग, थिंक इट एज ए स्ट्रक्चर एज ए एंकर, मीनिंग यू वांट टू कन्वे टू द पर्सन कि व्हाट इज रिटन वेयर। वो खोजेगा नहीं कि कहाँ पे लिखा है। तो मान लीजिए क्वेश्चन है, उसकी 3 डिमांड है, डिमांड 1, डिमांड 2, डिमांड 3। तो वो तीनों डिमांड आपने कहाँ लिखा है, आंसर लिखा है आपने, आई नो अपने कंटेंट है आपके पास, आपने लिख दिया, लेकिन वो दिखना चाहिए कहाँ लिखा। एंड देयर इज ओनली 2 थिंग दैट गेट्स दिखता है, दैट इज योर हेडिंग, सब हेडिंग, एंड सेकेंड इज अंडरलाइनिंग। तो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एक्सेसिव नहीं करना है, ठीक है, अंडरलाइन करना, पता चलना चाहिए ये, या बॉक्सिंग भी कर सकते हैं। बॉक्सिंग आई हैव सीन ऑल्सो वर्क्स अ लॉट। ठीक है, बॉक्सिंग कीजिए। ठीक है, एंड द सेकेंड इज द हेडिंग एंड सब हेडिंग। मतलब इसको ऑलवेज आई टेल इट इज लाइक अ हिंदूज एडिटोरियल। कितना अच्छा एडिटोरियल में एक बड़ा सा लाइन होता है, वो समझ लीजिए क्वेश्चन है। ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को एडिटर आंसर कर रहा है। वो आंसर कैसे करता है, लिखा, फिर एक छोटा सा 2 वर्ड का हेडिंग डाला, फिर एक पैराग्राफ लिखा, फिर छोटा सा 2 वर्ड का हेडिंग डाला, फिर एक पैराग्राफ लिखा। पर्पस क्या है इसका, कि वो बताना चाह रहा है कि ये सब एस्पेक्ट मैं कवर कर रहा हूँ। जैसे रिसेंटली वो हरियाणा के जो डीजीपी थे फॉर्मा, उनका एक आर्टिकल में देख रहा था हिंदू में, जब ये BNSS आया विथ रिगार्ड टू एविडेंस। तो आर्टिकल इतना ब्यूटीफुल लिखा हुआ था कि उन्होंने ये, मतलब क्वेश्चन ये था कि हाउ डिजिटल एविडेंस मेक्स ऑल द डिफरेंस, हेडिंग था, 1-2 महीना पहले की मैं बात कर रहा। फिर उन्होंने लिखा था कि कैमरा, मोबाइल फ़ोन एट वर्क, ठीक है, एक्सेप्टेबिलिटी बाय द कोर्ट। तो वो क्या एड्रेस कर रहा है कि कैमरा का क्या रोल होगा, मतलब डिजिटल मीडिया में सिर्फ कैमरा या वर्ड भी ले सकते हैं। मोबाइल फ़ोन जो रिकॉर्ड होगा वो किसका होना चाहिए, तो उन्होंने बताया कि एक ऐप होगा, उस ऐप में 90 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड होती है, और जब आप पहली बार है CRPC में, यू गो टू द क्राइम प्लेस, राइट, तो वंस यू रीच इट आपका वो ऑन होना चाहिए। और उसमें सिस्टम ऐसा है कि इट इज़ समथिंग 90 सेकंड का करेगा, और वंस द नेटवर्क कम्स इट गेट अपलोडेड, और टाइम स्टैम्प रहेगा, ताकि उसको कोर्ट की उसकी एक्सेप्टेबिलिटी मिले अंडर BNS। और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि ये सेक्शन में इट विल बी एक्सेप्टेबल एज एन एविडेंस। तो मतलब कि इवन दो कि अगर मैं डिटेल में ना पढ़ूँ, मैं समझ सकता हूँ कि व्हाट आर द एरिया ही इज ट्राइंग टू कवर। ये करना है आंसर, कि जो डिमांड है उसको हेडिंग और सब हेडिंग में डालना है। याद रहेगा ये पॉइंट, ठीक है। तो स्ट्रक्चर हैज ए वेरी स्पेसिफिक मीनिंग, याद रहेगा ये पॉइंट, क्लियर है ना। अगेन दिस इज समथिंग विच इज इम्प्रूव इट बाय राइटिंग एंड राइटिंग। एक बार में आपने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझ लिया कि इसमें ये सब हेडिंग चाहिए, एकदम फिट हो जाता है दिमाग में। यार मैं बता रहा हूँ कि भाई ये 4 हेडिंग होगा, ये 4 केसेज होगा, खत्म। याद रहेगा ये पॉइंट। जैसे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर, मैं एकदम बिल्कुल एक स्ट्रक्चर बना के रखा हूँ कि भाई लिखो 300 और 299, ऊपर में बॉक्स कर दो। पॉइंट नंबर 1 301, 299 1 दोनों को लिखो, केस लो लिख दो। फिर दूसरा बॉक्सिंग करो 299 2 301 2, उसकी बॉक्सिंग करो, दोनों के
मैं दोनों के पहले वर्डिंग लिखो और जो वर्डिंग में मेन पॉइंट उसको बॉक्स कर दो, इन ऑर्डिनरी कोर्स लीडिंग टू डेथ, उसको बॉक्स कर दो और उस पर केस लिख दो। कितना अच्छा स्ट्रक्चर है। तो ऐसी तरीके से क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, जैसे यहाँ इतने सारे क्वेश्चन लिखेंगे ना, स्ट्रक्चरिंग ऑटोमेटिकली यू विल लर्न ये करता है। और इस तीनों का सबसे बेहतरीन सोर्स आई मस्ट टेल यू इज द टॉपर्स कॉपी। मोर देन 100 टॉपर्स कॉपी पड़े हुए हैं वेबसाइट, देखा? नहीं देखा तो देख लीजिए, सबके टॉपर्स कॉपी, जो भी रिजल्ट है सबका टॉपर्स कॉपी वहाँ पड़ा हुआ है। कुछ के नहीं है, जो लोग ऑफलाइन आते थे, हम लोग ऑब्वियसली वी आर नॉट अ सो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट इन दैट सेंस, राइट, कि सबका कॉपी एकदम स्कैन करके रखे हम लोग, ठीक है। तो 2-4 कॉपी जिनका स्कैन नहीं होता है नहीं डालता हूँ, ऑब्वियसली। समझ में आ रही बात है, क्लियर है, राइट? तो टॉपर्स कॉपी जरूर देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रहेगा ये पॉइंट, क्लियर है, अंडरस्टूड, राइट? सो मीन्स कि योर राइटिंग आंसर you have to focus on content, you have to focus on presentation, and you have to focus on structure, and they are not abstract wording, each have a specific meaning. This I tell in the introduction class itself, because once you write the answer तो कहीं कहीं मैं कमेंट लिखूंगा कि स्ट्रक्चर इंप्रूव करो, तो आपको ट्रिगर हो जाना चाहिए, अच्छा मैंने हेडिंग से वेडिंग नहीं दी। समझ में आ रही बात है, क्लियर है, अंडरस्टूड, ओके। So I have explained you the notes making, I have explained you the time taken in the classes, I will explain you the entire method that we will teach, how the test series and etc. will function. Test series is included by default in this, okay? So everything will function. Now nothing more from my side. Any questions from your side, please go ahead, online people, you know, type one by one. आप लोगों को भी कुछ पूछना तो बताइए, anything you want to ask? Mostly last 1 year. 2 years, 2 years. उसमें भी क्या है ना कि कंटेम्प्रेरी इंपॉर्टेंट है rather than current. जैसे ये जो तमिलनाडु गवर्नर वाला जो जजमेंट आया, राइट, तो अगले 2-3 साल के लिए इंपॉर्टेंट है, तो कंटेम्प्रेरी rather than current, ठीक है? Yes. Online people, any question, you simply type it out. Mr. Harris, Arun, anyone? थोड़ी सर्दी हो गई है, राइट, वो जो सीजनल, हाँ, थोड़ी सी बोलने में दिक्कत तो हो रही है। यस, मंडे से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट विथ मंडे, मंडे विल स्टार्ट विथ इट। यस, नो क्वेश्चंस, तो वाइंड अप करें फिर। Everything is clear. Notes alone, no, not at all, Sachu, that will not happen. That is their IPR, right? They won't do it. Everything else is clear, na? Virsalu, I think you joined late, right? I've discussed that it will take 5 months to cover the entire syllabus, very detail में, किस part में how much time I will take, okay? So watch the recording once, Virsalu, you will understand it, okay? चलिए, so let us wind it up, ठीक है? Let us meet on Monday. और we'll go with it. नहीं रजत, ये that is the point I have discussed also, रजत, is that upcoming मेंस के लिए तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अप्रैल तक होगा, तो अब जो पीछे वाला बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो उसमें 2-3 जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा चुका हूँ, यू वॉच इट पैरेलली, ओके? तो अपकमिंग के लिए, ताकि यू कैन कवर इट। प्रिंटेड नोट्स, वंस यू टेक द एडमिशन दे विल सेंड यू बाय पोस्ट द प्रिंटेड नोट्स, इसीलिए मैं ये 2 दिन का गैप देता हूँ ना, कि भाई 2-3 दिन में बच्चों को पहुँच जाता है नोट्स, ओके? ठीक है, चलो, ओके देन, वाइंडिंग इट अप, थैंक यू।